सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन होइए। कॉलेज में माइक प्लीज सब जन जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। विद इन 5 मिनट्स हमारा आज का वेबिनार स्टार्ट होगा। हमारे जो आज के प्रेजेंटर है ऑनरेबल दिव्या लखारिया मैडम, वो कुछ ही क्षणों में हमसे ज्वाइन होने वाले हैं। उनके ज्वाइन होते ही से हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा।
बोला. हॅलो. हा, कनेक्ट झाले ना तुम्ही? हो. ठीक ठीक. मॅडम फेस नाही दिसताय. व्हिडिओ ऑफ करून ठेवले मी. काय? टॅप करू का? हॅलो मॅम. स्पीकिंग करू का? बंद. कीजिए, कुछ ही देर में प्रोग्राम स्टार्ट होगा. ऑनरेबल दिव्या लखारी मैडम ज्वाइन हो चुके हैं हमें. वेलकम मैडम. प्लीज सभी लोग अपना माइक ऑफ रखिए. भिवापुरकर मैडम. सर, आई एम स्टार्टिंग नाउ. लखारी मैडम, आर यू रेडी? Shall we start the program? हेलो. हॅलो. हेलो पांडे. शैल वी स्टार्ट? पासवर्ड
Hello, Pandey sir. Hello, Pandey sir. Hello, ma'am. Can you hear me? Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Okay. Hello. Okay. Voice is okay, na? Clear? Is okay. Clear? Okay. Okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon, afternoon, ma'am. everyone. Good everyone. Okay. I'm in I'm guest. introducing our chief Okay. guest. Okay. Hello, everybody. Hello, Today, everybody. Ranveer Today, Singh Basaria Ranveer Singh Mahavidyalay Basaria Mahavidyalay webinar on webinar on development program skill for development students. program for students. Now I'm Now I'm our chief guest, chief guest, Honorable Divya Honorable Lakera ma'am. Divya Lakera ma'am. Divya Lakera ma'am Divya is an Lakera ma'am is an educationist, content educationist, strategist, content strategist, writer, writer, business communication expert, expert, teacher trainer, teacher trainer, corporate trainer, corporate trainer, life coach, life and coach, NLP and NLP practitioner with practitioner more than with 15 more years than of 15 teaching years of teaching experience experience and 9 plus years of experience in and training. 9 years of She has experience in conducting training. more than She has 500 conducted professional more than development 500 workshops professional for development workshops for teaching at school, at school college level and on college learning level goals, on learning teaching goals. methodology, effective communication Effective skills, communication skills, presenting skills, presenting skills, different style of different style learning, of learning, classroom management, classroom and management, teacher as and leader. teacher as leader. Trainees have termed Trainees her have termed her different different workshops as highly workshops valuable, as highly valuable, effective, memorable, wonderful, memorable, interesting, and wonderful, life transforming interesting, and life experiences. transforming experience. As a As an experts, communication she has experts, collaborating with faculty members of engineering and management colleges in Maharashtra to design year-round curriculum in communication skills and language proficiency for undergraduate and postgraduate students. She has a wide experience of training students in publishing, presentation skills, effective communication skills, and creative writing. She has also trained a large number of students and professionals in business English, preparing them for BEC examination conducting by British Council. As the chief visitor and content strategist for a leading publication house, she has edited and designed a diverse set of school textbooks on different subjects, primarily English, environmental science, and general knowledge for class 1 to 10. A multifaceted personality, she has written articles for college magazine, newspapers, and research journals, design and develop content for websites, brochures, and training material, and also edited dissertation papers and research articles for technocrats. She is a recipient the Best Paper Award at Confluence 3 Annual International Conference on Teaching and Learning English as a Second Language held at Nagpur in 2011. She has been closely associated with leading educational institutions across the country, having the rich experience of working with some of them. This was the introduction about our chief guest, Honorable Divya Lakera ma'am. In today's webinar, what we learn, I'm telling you one by one. First of all, we learn power of words, then words of your personality, then do you wish to change your personality, then change the way you communicate, and finally, we will learn about the right way to express yourself. These all things are we learn today. We learn are today, learning we are today. learning today, Uh, right, uh, right now, right now. I am requesting I'm to Divya ma'am requesting to to continue Divya your ma'am valuable to words. continue your valuable words. Before you start your lecture, Divya madam, Before you start
your lecture, Divya madam? I requesting to all the participants, सभी participants से request है, सभी participants से अपने mic को off रखिए, please. mic को off रखिए, please. All the participants, please off your mic, your mic, so that you can listen, madam properly. आप सभी लोग अपना माइक ऑफ रखिए ताकि आप मैडम को सही तरीके से सुन पाएंगे. Okay, over to you, madam. Thank you. Okay, thank you so much, and thank you so much to the management and principal ma'am for giving me this opportunity to be here. And good afternoon to all the students and all the lecturers, professors, and all the participants who are attending this workshop. It is really a wonderful opportunity. बहुत बड़ी opportunity है to interact with everyone. Can you see the screen? Sir, can you see the screen? No, madam, currently not. Yes, madam. Yes, madam, दिख रहा है. आप सुन सकते हैं मुझको? जी जी मैडम. अच्छा ठीक है. स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, ma'am. जी मैम दिख रहा है. Okay. So, okay. Wonderful. So, very good afternoon to everyone once again. और आज हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हम इसके बारे में बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं. तो हम लोग अभी जो हमारे पास टॉपिक है, हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ बेटर. मेरे पास, मैं यहाँ पे चैट सेक्शन नहीं देख पा रही हूँ. आप अगर मुझे यहाँ पर क्वेश्चन या कुछ हेलो यहाँ पे चैट में मैसेज देखेंगे, भेजेंगे, तो मे बी आई विल बी एबल टू चेक इफ इट इज वर्किंग और नॉट. हैज एनीबडी सेंट द मैसेज? तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम अपने आप को कितने प्रकार से व्यक्त करते हैं. हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ से हमें क्या तात्पर्य होता है, क्या हमारे लिए इसका सिग्निफिकेंस है, एक्सप्रेशन क्या है हमारे लिए? क्या कोई मुझे अनम्यूट करके बता सकता है या चैट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि एक्सप्रेस करना मतलब क्या है? ओके, मैं आपको बताती हूँ. सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हेलो. यस मैम, क्लियर आ रही है आपकी आवाज. आवाज क्लियर आ रही, क्लियर दिख रहा है? हाँ यस मैम, दिख रहा है. एवरीथिंग इज ओके. ठीक है, एवरीथिंग इज ओके. ओके, तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं. एक्सप्रेस करना मतलब व्यक्त करना. हम लोग सभी बहुत सारी, हमारे अंदर वी हैव फीलिंग्स, वी हैव इमोशंस, वी हैव आइडियाज, वी हैव इंफॉर्मेशन, वी हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज व्हिच वी वांट टू शेयर विद एवरीवन. और जब हमें किसी के साथ भी ये शेयर करनी है, तो हमें कैसे शेयर करेंगे? जब हम अपने आप को व्यक्त करेंगे. And how do we express ourselves? We can express ourselves in different ways. हम शब्दों से व्यक्त कर सकते हैं. हम कभी-कभी अपने एक्शन से अपने बारे में बता सकते हैं. हम कभी-कभी अपने बॉडी लैंग्वेज से बता देते हैं. कभी हम अपने सिंगिंग से भी बताते हैं, कभी डांसिंग से भी बताते हैं, कभी राइटिंग से भी बताते हैं. तो हम डिफरेंट तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. और हमें एक्सप्रेस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें एक्सप्रेस करना है क्योंकि हम सबको अपने बारे में बताना चाहते हैं कि हम क्या महसूस करते हैं और हमारे अंदर कितना सारा ज्ञान का भंडार है, या नॉलेज या इंफॉर्मेशन है, या
हमारे कितने अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, या हमारे पास कितनी सारे डिफरेंट टाइप के इंटरेस्ट्स हैं, हमारी कितनी सारी हमारे फीलिंग्स, इमोशंस हम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये एज, आज की एज is the age of communication. So expression becomes a very very important point. और जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम अपने आप को शब्दों के द्वारा ज्यादातर शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। मैम ये कहीं से आवाज एक हो रहा है, किसी का माइक है शायद। यस, या स्पीकर ऑन है। यस, प्लीज म्यूट। मैडम बंद कर दिए। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जब भी हम किसी से भी बातें करते हैं, शब्द करते हैं, तो जैसे एक बहुत बड़ा, आप ये सोचिए कि एक रूम है जिसमें बहुत सारा ट्रेजर है, बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं, बहुत सारा खजाना है, हर तरह की चीज है उस कमरे में, पर उस कमरे में दरवाजा नहीं है। तो वो उस कमरे का खजाना दुनिया तक कैसे पहुंचेगा? सिमिलरली हमारे अंदर भी बहुत सारा ज्ञान का भंडार है, पर अगर मेरे पास वो खजाना व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है, तो मैं उसको दुनिया में, अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में, अपने कॉलेज में, अपनी सोसाइटी में कैसे मैं उसको पहुंचा सकती हूँ? मैं उसको पहुंचा ही नहीं सकती हूँ। तो इन सब के लिए मुझे किन चीजों की आवश्यकता होती है? शब्दों की आवश्यकता होती है। और शब्द ऐसे चाहिए जो कि पावरफुल वर्ड्स हो। और शब्दों को, पावर क्या होती है? अगर मैं किसी से पूछूं कि शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है, तो पहले हमने बुक्स में पढ़ा है और हमने अपने देखा है कि पहले के जमाने में राजा बहुत शक्तिशाली कहते थे, किसी के पास मिलिट्री बहुत ज्यादा है तो ही हैज अ लॉट ऑफ पावर, किसी के पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। Today, the person who can communicate well has a lot of power. So this is what the power of communication is, because everything around us is being sent. Everything is a message. Everything. हर चीज, आप मीडिया का इतनी न्यूज सुनते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम इंटरनेट पे देयर सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी बुक्स आर आल्सो कम्युनिकेटिंग टू यू समथिंग। हम एक दूसरे से जब बातें करते हैं तो हम अपने कुछ वार्तालाप में बताते हैं कि what we are feeling and what we are experiencing. तो everywhere communication is going on at all times, but it is a very complicated process. कम्युनिकेशन का मतलब होता है, देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो मैं बात कर सकती हूँ, टॉक। तो टॉकिंग इज समथिंग व्हिच कम्स टू अस नेचुरली। अगर हम किसी से भी बात करें तो भाई, बात करना किसको नहीं आता? एक छोटे से 2 साल के बच्चे को भी बात करना आता है, एक 1.5 साल का बच्चा भी अपनी बात समझा देता है। तो टॉकिंग कौन सा सीखने की चीज है? तो टॉकिंग और कम्युनिकेटिंग में देयर इज अ डिफरेंस। हम जब बात करते हैं तो कई बार हम दूसरे का फीडबैक नहीं लेना चाहते, हम खाली अपनी बात कहकर बस हमें लगता है कि हो गया, but that is not the right way. Right way is to understand what the other person is also feeling, and that is communicating. So communication is power, and that is why words have power. तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन में या किसी भी संवाद में हम क्या करते हैं? हम अपने मन के आइडियाज दूसरे को समझाते हैं और दूसरे के मन में वो पिक्चर बनाते हैं जो हमने अपने मन में सोचा हुआ है। जैसे इन्होंने कुछ विचार है और वही विचार हमने दूसरे तक पहुंचा दिया। तो जब हमने अपनी बात सही तरीके से बता दी और दूसरे ने उस बात को सही तरीके से समझ ली,
तो ये कम्युनिकेशन हो गया। परंतु इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं और इसीलिए इनको कहा जाता है द पावर ऑफ वर्ड्स, हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो सबसे पहले अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो प्लीज नोट डाउन how to express yourself. May there are different ways in which we can express ourselves. We can express through words, we can express through actions, we can express through language, we can express through dancing, we can express through so many ways. पर आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, how to express yourself through words. और अगर आपको अपने को एक्सप्रेशन इंप्रूव करना है तो हमारे जो शब्दों का इस्तेमाल है उनकी महत्ता को हमें समझना पड़ेगा, उनमें कितनी पावर है, उनमें कितनी शक्ति है, उनमें कितना सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमें जरूरी है। शब्द कर सकते हैं, नहीं सुनाना चाहती हूँ आपको, फिर किसी का तो इसके लिए कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार आप जैसे हम फुटपाथ पे देखते हैं कि एक कोई गरीब आदमी था, तो वो गरीब आदमी देख नहीं सकता था, तो उसे क्या चाहिए था, आने जाने वाले लोग उसे फाइनेंशियली हेल्प करें। तो उसने वहां पे एक बोल रख दिया और उस बोल के सामने एक बोर्ड लगा दिया और उस बोर्ड में क्या लिखा हुआ था, मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, बस ये लिखा हुआ था। आने जाने वाले लोग जो थे, जिनको समझ में आ रहा था कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, वो उनकी मदद कर रहे थे और आगे निकल जा रहे थे। अब इस इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं आए, पर थोड़े बहुत पैसे आ गए। तभी वहां से एक महिला गुजरी और वो महिला जो थी वो बड़ी स्मार्ट सी थी। उन्होंने देखा कि इस इंसान का तो ऐसे कुछ भला नहीं हो सकता, क्योंकि इसके शब्द जो हैं उनमें वो ताकत नहीं है। तो उन्होंने उन शब्दों को बदल दिया और एक नया बोर्ड लगा दिया। उसमें लिखा था, आज एक बहुत खूबसूरत दिन है पर मैं इसे नहीं देख पाऊंगा। तो जब ये शब्द अगल बगल वालों ने देखे तो उनके इमोशंस को छुआ, उनके दिल को छुआ। बात वही थी पर शब्दों के प्रयोग से मीनिंग चेंज हो गया था। And more people started contributing to this blind man. Blind man के पास बहुत सारे पैसे आ गए। तो ये है पावर ऑफ वर्ड्स। ये हमें बना भी सकते हैं और ये हमें मिटा भी सकते हैं, इतनी इनमें ताकत होती है। तो एक और मैं कहानी सुनाना चाहूंगी और मैंने सोचा है आज के सेशन में मैं आपको बहुत सारी कहानियां, उसके द्वारा हम अपनी बात को समझेंगे। तो क्या होता है, हर पेरेंट को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे में बहुत सारे गुण हैं, और जो कि बहुत सारे गुण होते हैं, और हम उन गुणों को, हम उन टैलेंट्स को, उन पोटेंशियल को, हमेशा ऐसा लगता है कि कोई जानने वाला मुझे बताए कि हमारे बच्चे में क्या क्या टैलेंट है, क्या क्या पोटेंशियल है, क्या क्या इनकी इंटेलेक्ट है। तो ऐसे ही बहुत साल पहले की बात है, एक ग्रीस एक शहर है, वहां पे एक फिलोसोफर होते थे, सोक्रेटिस। वो बहुत ज्ञानी, वाइज मैन माने जाते थे। तो एक रिच मैन इन दैट कंट्री टुक हिज सन टू सोक्रेटिस और उन्होंने कहा कि भाई सोक्रेटिस सर, प्लीज मेरे बेटे को देखिए और बताइए कि इनमें क्या क्या गुण है, क्या क्या इसमें टैलेंट्स है। तो सोक्रेटिस ने उनको देख लिया और कहा कि speak so that I may see you. खाली अगर आप आंखों से देखते हैं किसी को तो आप उस पर्सन की आधी पर्सनालिटी देखते हैं, because that is only the outer appearance. You get to know what a person is
when you hear the person speak, that is again the power of words. So he said, those who see only with their eyes are blind. Speak so that I may see you. So speak so that I may hear you. नहीं बोला उन्होंने बोला मुझे आपको देखने के लिए, मुझे आपको जानने के लिए सुनना जरूरी है कि आपके शब्द क्या कहते हैं. तो आपके शब्द आपको डिफाइन करते हैं, आपकी पर्सनालिटी है, आपका पूरा विद्या ज्ञान, आपकी सोच समझ, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज, सारी चीजें शब्दों के द्वारा बयां होती हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू स्पीक. And if you want to express yourself better, then we have to change the way we speak. So let's see. This is a picture. अब ये communication का जमाना है, and this is a picture of modern times. कहीं कोई फोन पे, कोई मोबाइल पे कर रहा है, कोई आईपैड, लैपटॉप, कंप्यूटर पे कर रहा है. Everywhere there is communication, everywhere there is transfer of information. This is the information age. Too much of information, too much of knowledge. So that is why how to transfer this knowledge becomes even more important. और इसके लिए कम्युनिकेशन का प्रोसेस आता है. तो अभी तक हमने क्या क्या किया? अभी तक हमने किया कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और क्यों एक्सप्रेस करते हैं. पहले तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं तो शब्दों से तरह तरह की चीजें बताई. क्यों एक्सप्रेस करते हैं? क्योंकि फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं. और किस किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस करते हैं. पर अब हमें अपना एक्सप्रेशन बेटर बनाना है. तो एक एक्सप्रेशन का टूल है वर्ड्स, और शब्दों को हम अब पावरफुल बनाएंगे तो हम अपने आप को बेटर एक्सप्रेस भी कर पाएंगे, और उसी के साथ साथ हम कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस भी समझ पाएंगे. तो देखिए दोनों चीजें रिलेटेड हैं. बेटर एक्सप्रेशन, जितने भी कम्युनिकेटर्स आज आपको दुनिया में लगता है कि दे आर मेकिंग अ नेम फॉर देमसेल्व्स, आर people who are bringing about a change in the society, in the world, are all very effective communicators. हमारे leaders हैं, हमारे actors हैं, हमारे businessmen हैं. They all have great power to express themselves, and they are very good communicators. That is why they are bringing about a change. जैसे बिल गेट्स, या जैसे आप सुंदर पिचाई, या जैसे आप नरेंद्र मोदी, या जैसे आप अमिताभ बच्चन, या जैसे आप कोई भी एक्टर की बात कीजिए, या कोई भी ऐसे फेमस पर्सनालिटी की बात कीजिए, दे आर ऑल एक्सीलेंट कम्युनिकेटर्स. तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मुझे जाननी चाहिए? तो देखिए होता क्या है कि मैं एक मैसेज भेज रही हूं, जहां पर आप देख रहे हैं ये मोबाइल में सेंडर है, और किस द्वारा वो मैसेज भेज रहे हैं, एक उनके पास मोबाइल फोन है, और रिसीवर है. रिसीवर के पास वो मैसेज आ रहा है, और मैसेज से वो फीडबैक आ रहा है. ठीक है. तो हमेशा कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एक मैसेज भेजने वाला होता है, एक मैसेज रिसीव करने वाला होता है, और एक कोई मीडियम या जरिया होता है जिसके थ्रू दैट कम्युनिकेशन मैसेज इज सेंट. और जब वो मैसेज मिल जाता है तो हम फीडबैक देखते हैं. जैसे मूवी स्टार्ट्स एट 9, कैन यू ड्राइव अस? या बी देयर बाय 8:30. दिस इज द फीडबैक. तो ये सिंपल सा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है जो कि हमारा सारे टाइम चलता रहता है. पर इसमें कॉम्प्लिकेशंस, तो जैसे आप जैसे कंप्यूटर पे काम करते होंगे तो इंफॉर्मेशन इनपुट होता है, आप कुछ उसमें डेटा ऐड करते हैं. जब आप डेटा ऐड करते हैं तो कुछ आउटपुट आता है ना.
तो आपका जब अगर आउटपुट आपको सही चाहिए तो आपको इनपुट सही करना पड़ेगा। अगर आपके इनपुट में कुछ गड़बड़ हो गई तो आपके आउटपुट में भी कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो सिमिलरली जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम कुछ डेटा सेंड करते हैं और वो डेटा इंफॉर्मेशन जो हमारी आगे जाती है उसके बेसिस पे हमें कुछ फीडबैक मिलता है और वो फीडबैक किस रूप में मिलता है? बिहेवियर के रूप में मिलता है। तो जैसे ये बोल रहे हैं दिस इज व्हाट आई मीन और ये आगे जाता है किसी चैनल के थ्रू और अगर आपको वही फीडबैक मिल गया जो आपको चाहिए था, वाओ, आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल। और कभी कभी नहीं मिलता है तो कम्युनिकेशन फेल भी हो जाता है। तो अभी एक और कहानी सुनने का टाइम है। अब हम शब्दों की बात कर रहे हैं तो शब्दों में तो हमने कहा यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उनमें शब्द हमारे 7% है, पर शब्दों में पावर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पावर है। तो एक और मैं आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक बहुत टॉल बिल्डिंग थी और उस टॉल बिल्डिंग के पास एक पॉन्ड था and in that pond there were many frogs and tadpoles. तो tadpoles क्या होते हैं? वो तो they are going to grow into frogs only. So थोड़े टाइम के बाद वो tadpoles frog बन गए। अब young frogs थे, they wanted to see the world. तो they said हमें ये बिल्डिंग में क्यों नहीं आप लोग जाने देते हो, मुझे ये बिल्डिंग के टॉप तक जाना है। तो सारे जो सीनियर फ्रॉग्स थे उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम बिल्डिंग के ऊपर तक जा ही नहीं सकते हो। अगल बगल से भी लोग आ गए कि इस पॉन्ड में ऐसे यंग फ्रॉग्स हैं who want to climb up the wall, climb up the building. They said no 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 no, it cannot be possible. But these young frogs were very keen, very enthusiastic. They said nahi, we want to see what is on top of the building. And they all decided to have a race. और उस रेस में क्या था, जो सबसे पहले बिल्डिंग में ऊपर टॉप में पहुंच जाएगा वो विनर हो जाएगा। तो रेस शुरू हुई। अब सब लोगों ने कहा अरे ये क्या कर रहे हैं, ये तो ऐसे जा ही नहीं पाएंगे, किसी ने ऐसा आज तक किया ही नहीं है, कभी ये हो ही नहीं सकता, ये सब तो ऐसे ही जा रहे हैं। और जैसे जैसे फ्रॉग्स ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे क्रिटिसिज्म बढ़ता जा रहा था और होता क्या गया, फ्रॉग्स टड़प टड़प गिरते गए। दे कुड नॉट कंटिन्यू। बट एक फ्रॉग था जो चलता गया चलता गया चलता गया और टॉप पे पहुंच गया। तो सबने बोला अरे तुम कैसे पहुंचे टॉप पे? तो जो सीनियर फ्रॉग थे उनमें से किसी ने कहा ये इसलिए ऊपर पहुंच गया क्योंकि इसने शब्दों पे ध्यान ही नहीं दिया, ही इज डेफ, ये बहरा है। तो शब्दों का जो महत्ता है वो इतनी इंपॉर्टेंट है। जब हमें encouraging वर्ड्स, पावरफुल वर्ड्स मिलते हैं तो हम अपने आप को सारे चैलेंजेस को क्रॉस करने के लिए सक्षम पाते हैं। पर अगर मुझे वही वर्ड्स नेगेटिव मिल गए या वही वर्ड्स मुझे थोड़े से क्रिटिसिज्म वाले मिल गए तो मेरा सारा मनोबल भी टूट जाता है। तो शब्दों पे बहुत हमें ध्यान देना चाहिए, दे आर वेरी वेरी पावरफुल। और वर्ड्स आपकी पूरी पर्सनालिटी इज व्हाट यू से, they express your values and beliefs. Words make up your language. And if you wish to change, if you wish to become a better version of yourself, then change the way you communicate. तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कम्युनिकेशन का वे कैसे चेंज करना है, ठीक है? तो ये होता है पावर ऑफ वर्ड्स। अब पावर ऑफ वर्ड्स में तो ठीक है कि हमें शब्द बहुत ध्यान से बोलने चाहिए, पर उन्हीं शब्दों को हमें सही तरीके से भी बोलना चाहिए। हाउ टू से दोज वर्ड्स। जैसे
आई एम हैप्पी। अब अगर मैं बोल दूं आई एम हैप्पी, तो आप बोलोगे अरे ये क्या, आवाज में तो कोई एनर्जी ही नहीं है, ऐसे कौन बोलता है आई एम हैप्पी। तो मैंने शब्द तो बोले आई एम हैप्पी, पर मैंने गलत तरीके से बोले। तो ये मुझे हाउ टू से द वर्ड्स इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए मेरी टोन सही होनी चाहिए। अगर इफ आई एम हैप्पी, आई शुड हैव अ हैप्पी टोन। आई एम हैप्पी लगना चाहिए। वॉल्यूम, अगर मैं बहुत धीरे से बोलूंगी तो लोग मेरी बात ही नहीं समझ पाएंगे। सो आई हैव टू हैव द राइट वॉल्यूम एंड माय वर्ड शुड बी करेक्ट। और मेरी स्पीड ना ज्यादा ना कम। अगर आप फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी बातें कर सकते हैं, पर अगर आप किसी को कोई चीज समझा रहे हैं तो आपकी स्पीड थोड़ी सी मॉडरेट होनी चाहिए। तो टोन, वॉल्यूम, वर्ड चॉइस और स्पीड का ध्यान रख के जब हम शब्दों को बोलते हैं, यूज करते हैं, तब हमारी सही इफेक्ट आ पाता है। ठीक है, तो अब हम शब्दों का महत्व समझ रहे हैं और शब्दों को कैसे बोलना है वो समझ रहे हैं। अब ये आ गया वर्बल, जहां हम बोलकर कर रहे हैं, और जहां आ गया ये नॉन वर्बल। तो ये देखिए, इसमें तो शब्द ही नहीं है। आप बोलेंगे मैम हर जगह तो शब्दों की जरूरत नहीं होती है। अब ये पिक्चर में तो शब्द है ही नहीं, इसमें तो खाली एक्सप्रेशंस हैं और खाली एक्शंस दिख रहे हैं, फिर भी मैसेज आ रहा है। तो इसको बोलते हैं, जहां शब्दों के बिना हम अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, उसे बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल लैंग्वेज। तो आपको खाली शब्दों का चुनाव सही तरीके से ही नहीं करना है, आपको बॉडी लैंग्वेज भी सही रखनी है, पॉजिटिव रखनी है। अब इन इंसान को देखिए, जो लड़का है वो इतने दुखी और फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री और एकदम उदास डिजेक्टेड से लग रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लग रही है। और उनके साथ जो महिला बैठी हुई है, शी इज ट्राइंग टू एनकरेज हिम and trying to tell him कि have coffee, it will be all good। तो कभी कभी हमारे शब्द सही होते हैं, हमारी टोन भी सही होती है, पर हमारी बॉडी लैंग्वेज इज ऑल रॉन्ग। तो बॉडी लैंग्वेज को भी हमें सही रखना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये एक स्माइलिंग सा फेस है, खूब खुश है, एक थोड़ा सोच रहे हैं और एक बड़े गुस्से में है। तो ऐसा होता है, ये शब्द जो हैं, ये बड़ा, ये बॉडी लैंग्वेज जो है, ये बहुत सारी चीजें हमारे बारे में बता देती हैं। तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हमारी बॉडी लैंग्वेज सही हो। और ये हमारी बॉडी लैंग्वेज बनती कहाँ से है? बहुत बार जो हम सोच रहे हैं ना, वो हमारे, जैसे सपोज if I am if I am attending a program, or if I am sitting in an important meeting and I'm trying to be very very attentive, पर कहीं ना कहीं मेरी रात में नींद हुई नहीं थी और मुझे नींद अभी आ रही है, तो पर मुझे तो, मैं मीटिंग में तो सो नहीं सकती, तो मैं तो आई एम ट्राइंग टू बी ऑल अवेक, पर मेरा एक पीछे से सबकॉन्शियस माइंड चल रहा है, और वो सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि नींद आ रही है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो दिखाएगी कि आपको नींद आ रही है। तो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है वो बॉडी लैंग्वेज में दिख जाता है। तो जब मैंने सबकॉन्शियस माइंड बोला, इसका मतलब एक कॉन्शियस माइंड भी होता है। तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड बड़ा स्मार्ट होता है। जैसे आपका कहते हैं कि थोड़ा सा पोर्शन, कॉन्शियस माइंड तो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता, मतलब subconscious mind is more, like they say that 95-96% is subconscious mind and 4 to 5% or 2 to 3% is conscious mind। तो कॉन्शियस माइंड को बहुत सारी चीजें पता होती हैं कि हमें ऐसे रहना है, हमें ऐसे बिहेव करना है, हमारे ऐसा मुझे बोलना चाहिए। सब कॉन्शियस माइंड जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस कर देता है। तो पावर टू चेंज में मुझे कैसा फील होता है वो भी चेंज करना पड़ता है।
तो लेट्स सी, ये देखिए, ये एक पर्सन की बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है कि वो गुस्सा है और वो उदास है, और एकदम से दूसरे पर्सन की बॉडी लैंग्वेज ऐसा दिखा रही है कि ही इज वेरी हैप्पी। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आर्म्स भी क्लोज्ड हैं, कभी भी ऐसे क्लोज्ड आर्म्स के साथ नहीं बैठना चाहिए, चेहरा के एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं हैं, और यहाँ पे चेहरा भी थोड़ा ब्राइटर लग रहा है बिकॉज द स्माइल इज देयर, आर्म्स आर ओपन, रिलैक्स्ड पोज है। तो जब मेरी ऐसी बॉडी लैंग्वेज है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे मन को भी अच्छा लग रहा है, दिस इज हाउ आई एम फीलिंग। और पहली पिक्चर में ऐसा लग रहा है कि आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग अपसेट, आई एम फीलिंग डिजेक्टेड, एंड सेकंड पिक्चर को देख के लग रहा है कि आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग पॉजिटिव, आई एम फीलिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये जो फीलिंग होती है ना हमारी, ये बॉडी लैंग्वेज दर्शा देती है। तो वर्ड्स होने चाहिए हमारे पास, हाउ टू से दोज वर्ड्स करेक्टली होना चाहिए, और बॉडी लैंग्वेज भी सही होनी चाहिए, तब हमारा पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस सही होता है। अब इसमें एक और चीज आती है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है। हम दूसरों से तो बातें करते हैं, है ना, सारे टाइम हम दूसरों से बातें करते रहते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि हम अपने आप से भी बातें करते हैं? तो ये जो आपको पहली पिक्चर दिख रही है ना, वो है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब विद इन मी। और जो दूसरी पिक्चर दिख रही है जहां पे 2-3 लोग हैं, वो है इंटरपर्सनल, मतलब एक से ज्यादा। जैसे आपके कॉलेज में जब फंक्शन होता है, तो कुछ कॉलेज के फंक्शंस तो कॉलेज के अंदर ही होते होंगे, तो दे आर ऑल इंट्रा कॉलेज इवेंट्स। और जब आपका कॉलेज ऐसी कंपटीशन में जाता है जहाँ पे कि 5, 6, 10 कॉलेजेस हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो इंटर कॉलेजिएट इवेंट बन जाता है। So similarly, when I talk to others, that is my interpersonal communication. But when I'm talking to myself, then it is intrapersonal. मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ, और मैं अपने आप से कैसे बातें करती हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने आप से बातें करने के लिए हम बहुत अपने को कड़े शब्दों में कभी कभी अपनी ही निंदा करते हैं, या वी आर नॉट हैप्पी, वी डोंट फील गुड। तो जब फील गुड वाली बात होती है ना कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई डोंट फील गुड बिकॉज somebody said this, somebody said that, तो वो उसके बाद हम अपने आप को, क्योंकि उसने ऐसा बोला इसलिए मेरे में ये कमी होगी, that is not how we have to look at things. ये जो थॉट्स हैं, है ना, ये थॉट्स हमारे जैसे बन जाते हैं, वैसा ही हम फील करने लग जाते हैं, और जैसा हम फील करने लग जाते हैं वैसा ही हम बिहेव करने लग जाते हैं। तो जब ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती है ना, ये आपका सारा बिहेवियर दर्शा देती है। तो जो हमें बिहेवियर में दिखता है, हमें अगर लगता है कि अरे दिस पर्सन इज वेरी वेल बिहेव्ड, दैट मीन्स उनका इंटरनल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो गोइंग ऑन वेरी गुड। दिस पर्सन इज नॉट बिहेविंग वेल, इसका मतलब उनकी खुद से कम्युनिकेशन सही नहीं चल रही है। So intrapersonal communication आपका बिहेवियर में पूरा दिख जाता है। और अगर आप किसी चीज से गुस्सा हैं, या अगर आप किसी चीज से फ्रस्ट्रेशन में हैं, या आप किसी चीज से नाखुश हैं, या आप किसी चीज से अपसेट हैं, तो ये सोचिए कि वो चेंज हो सकता है, एंड दैट इज द पावर। पावर का मतलब क्या होता है? पावर इज द एबिलिटी टू एक्ट। अगर मेरे पास पावर है
तो मेरे पास एक्शन लेने की क्षमता है। अगर मेरे पास पावर नहीं है तो मेरे पास वो एक्शन लेने की भी क्षमता नहीं है। तो if I say that I have the power, that means I have the ability to act on changing my beliefs, changing my ideas, changing my thought process, changing my emotions, changing my behavior, and changing my destiny. तो दिस इज द पावर। और ये पावर ऑफ वर्ड्स क्या है, क्योंकि थॉट्स कैसे आते हैं, शब्दों में ही थॉट्स भी आते हैं ना। तो जब हम अपने आप से बातें कर रहे हैं तो वो मेरे थॉट्स बन रहे हैं, और अगर मैं उनको लेस पावर वाले वर्ड्स के साथ बोल रही हूँ कि ओहो मेरे से तो ये हो नहीं सकता, मैं तो ये कर नहीं पाऊंगी, मेरे से ये पॉसिबल ही नहीं है, पता नहीं ये लोग बाकी लोग कैसे कर लेते हैं, पता नहीं उनसे कैसे हो जाता है, तो मैंने खुद को कैसे बातें की, नेगेटिव। तो मेरे इमोशंस कैसे हो गए, नेगेटिव, और मेरा बिहेवियर कैसा हो गया, नेगेटिव। अब मुझे ये चेंज करना है, तो मेरे पास तो वर्ड्स हैव पावर। तो व्हाट डू आई से, आई विल डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट, आई हैव द पोटेंशियल इन मी टू डू इट, I have all the talent in me to make it work. The moment I think like this, the moment my intrapersonal communication goes positive, my emotions also change and I start feeling that power to change, and then my behavior also changes and I'm much, much more positive. So behavior, communication is not only about what you are talking. Communication is the way you behave. So behavior is equal to communication. Everything about a person's personality, the way the person communicates, is reflected in the behavior. तो आपकी चलने का ढंग, आपके बैठने का ढंग, आपका बात करने का ढंग, आपका किसी भी चीज को अप्रोच करने का ढंग, आपके सोचने का नजरिया, आपका फीलिंग्स और इमोशंस को हैंडल करने का तरीका, everything is communicating something about you. And all this can be changed if we change the way we communicate. तो सिंपल सी चीज हो गई ना, बिहेवियर इज कम्युनिकेशन। अब मुझे बिहेवियर में कुछ चेंज लाना है, तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्टाइल। और कम्युनिकेशन स्टाइल कैसे चेंज होगा, जब मैं अपना शब्द चेंज करूंगी। और शब्द कैसे चेंज करूंगी, नेगेटिव को मैं पॉजिटिव में चेंज कर दूंगी। तो पॉजिटिव शब्दों से मेरे थॉट्स, मेरे इंट्रापर्सनल चेंज होता है, मेरा फीलिंग्स चेंज होता है, मेरे कम्युनिकेशन चेंज होता है, मेरा बिहेवियर चेंज होता है। तो इतना ये इम्पोर्टेंट क्या है इस सब चीजों में, प्रोसेस में, इम्पोर्टेंट इज टू टेक एक्शन। अभी ये चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, समझने में भी बहुत इजी लगती हैं, पर मुश्किल कहाँ आती है, जब एक्शन लेना पड़ता है। पर वहीं पे आपको अपने आप को याद दिलाना है, I have the power, and power is the ability to act, और act से बनता है action. So if I say I have the power, that means I will take the action to make this work. तभी मेरा improvement हो सकता है, and I can become a better version of myself. तो अब आप किसी को भी देखेंगे कि इनका तो बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा है, that means it is the inability to communicate. What we sometimes see as a failure to behave properly is actually a failure to communicate properly. तो जब हमें होता है ना कि किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे गुस्सा आ गया, किसी ने मुझे समझा नहीं और मुझे गुस्सा आ गया,
किसी ने मुझे कुछ बोल दिया और मुझे गुस्सा आ गया। अब देखिए सब जगह शब्द काम कर रहे हैं, एवरीवेयर। किसी ने मुझे बोल दिया, वर्ड्स। किसी ने मेरा सुना नहीं, मेरे वर्ड्स। किसी ने मेरी बात पे गुस्सा किया, मेरे वर्ड्स। सो these I mean this is the power of words. और जब हम उन इमोशंस, उन सिचुएशंस को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, तो फिर हम मिसबिहेव करने लगते हैं। और मिसबिहेवियर में क्या हो जाता है? एंगर, वही एंगर, फ्रस्ट्रेशन, वो सब, सैडनेस, वो सब जब निकलता है तो फिर हमारा मिसबिहेवियर ऐसा दिखता है कि इनको तो इनके कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए इनका मिसबिहेवियर सामने आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि पॉजिटिव बिहेवियर शोज व्हाट, मेरा इंट्रापर्सनल इज पॉजिटिव, मेरा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज पॉजिटिव, है ना? इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So let's just go back and quickly revise what we have done, because we have done many things from the beginning. So I will just quickly revise first and then do something new. तो ये हमारा टॉपिक था, how to express yourself better and the importance of communication. तो मैंने इसमें यहाँ पर how to express yourself better, और यहाँ पे ये जो इतने सारे emojis है ना, ये भी तो आजकल emoticons have also become a way to express. तो ये हमें एवरीथिंग इज एक्सप्रेशन. कभी कभी हम शब्दों को ना भेज के बस खाली एक स्माइली भेज देते हैं, या खाली एक गुस्से का इमोटिकॉन भेज देते हैं, या आपके नए नए आजकल शॉर्ट फॉर्म्स हो गए, ROFL भेज देते हैं, LOL भेज देते हैं. these are all expressions, these are all expressions, and these expressions are there in place because we want to show our emotions. बहुत हंसी आ रही है, LOL. बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्से वाला भी भेज दिया इमोजी. तो डिफरेंट वेज में हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कभी वर्ड्स के द्वारा, कभी सिंबल्स के द्वारा, बट राइटिंग में करते हैं, बोल के करते हैं, नॉन वर्बल में करते हैं, डिफरेंट वेज में करते हैं. तो यहाँ पर हम शब्दों की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हम ये जो वेबिनार है ये हमारा, दिस इज ऑन द पावर ऑफ वर्ड्स, बिकॉज दैट इज इन आवर हैंड. एंड व्हेन वी चेंज द पावर that words have within our system, we change our entire personality. So this is how we communicate when we send a message from our side to the other person. This is how we communicate. And then we, sir, is the PPT visible? Yes, madam, we can see. Okay, okay. So now we can come to the next point, that is the power of words, for which I've already shared a story. And this also I've explained to you. Speak so that I may see you. And then this is the age of communication and information, where channels are always on for receiving and interpreting information. So we have to be doubly careful in this time. And communication is everywhere, everywhere, on the internet, on the television, in the newspaper, on your mobile phones, in your neighborhood, in your college, in your families, with your friends, in the nature, within animals, everywhere there is communication. It is like it governs the world. Or because now students will be looking for jobs after graduation. तो आप जब जॉब्स के लिए जाते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? आपका इंटरव्यू. अब इंटरव्यू में क्या करना पड़ता है? आपको बोलना पड़ता है. तो the way you speak, the way you communicate, the way you present yourself actually determines how successful you are going to be. So interview is also a process to check how good a communicator you are. Because आपकी technical degrees, so everything is on the paper.
but they want to judge your personality. They want to see how much you know and how are you going to express it. And that can only be done through your communication skills. So this is everywhere. We cannot escape it. This is the basic structure of how information is passed on, how messages are received, and then how the communication goes on between individuals. This is what we understood. Then I told you about the words, the way we say those words, and the non-verbal language. अब इसको मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि बॉडी लैंग्वेज देखिए आपका 55% बॉडी लैंग्वेज, that is more than half. So words and voice tone, that is 45%. ये आपका शब्द है और जो आप कहते हैं. And body language is what you don't say. So whenever, अभी मैं आपको एक और principle बता रही हूँ which you can note down. So now it is, the research says that it is not what you speak, actually it is the preparation of speech that matters the most. जैसे एक बार एक इंसान गया एक कचौड़ी वाले के पास और उसने बोला कि मुझे कचौड़ी खानी है. तो उन्होंने बोला अच्छा, मुझे जिस कचौड़ी से मेरा पेट भर जाएगा उसका प्राइस क्या है? तो उन्होंने बोला 20 रुपए. तो इन्होंने कहा ठीक है, मुझे कचौड़ी दे दो. अब ये कचौड़ी खाने लग गए. इन्होंने 1 कचौड़ी खाई, 2 कचौड़ी खाई, 3 कचौड़ी खाई, 4 कचौड़ी खाई, 5 कचौड़ी खाई, 6 कचौड़ी खाई, 7 कचौड़ी खाई, 8 कचौड़ी खाई, 9 कचौड़ी खा ली. अब इनका पेट भर गया, 9 कचौड़ी खा ली इन्होंने. अब इन्होंने बोला कि बिल ले आओ. तो जब वो शॉपकीपर बिल के लेकर आया तो उन्होंने 180 रुपीज का, भाई 9 कचौड़ी, 9 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना होता है? 180 रुपीज. उन्होंने कहा कि 180 रुपीज का आपका बिल आ गया. तो ये सज्जन बोले 180 रुपीज तो मैं नहीं दूंगा, मैंने पूछा था जिस कचौड़ी से मेरा पेट भरेगा उसका क्या प्राइस है? आपने कहा था 20 रुपए. मेरा पेट 9th कचौड़ी से भरा तो मैं तो 20 रुपए ही दूंगा. 8 कचौड़ी तो मैंने, 8 कचौड़ी के लिए तो मैंने बोला ही नहीं था, मैंने तो खाली 9th कचौड़ी के लिए बोला था. तो ऐसा कम्युनिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि 9th step is the step what you speak and 8 steps are when you are preparing to speak. उन्होंने कहा पहली 8 कचौड़ियां आपके लिए प्रिपरेशन थी ताकि आपका 9th कचौड़ी से पेट भर जाए. अगर वो 8 कचौड़ियां नहीं होती तो आपका 9th कचौड़ी से भी रिजल्ट नहीं मिलता. इसलिए 8 कचौड़ियां जरूरी थी to get the desired result when the 9th कचौड़ी was eaten. So similarly in speaking we have to remember कि 9th step is the step of speaking. The initial steps are steps for preparation. So body language actually prepares you for what you are going to speak. अब जैसे आप एक एग्जाम्पल के लिए आपको सपोज, बिकॉज इफ देर आर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर देयर विल बी स्टूडेंट्स हियर, सो स्टूडेंट्स कितनी बार अपने फ्रेंड के पास या अपने पेरेंट्स के पास जाके बोल देंगे कि आपने अपने अगर पिताजी से जाके बोला कि मुझे नया मोबाइल चाहिए, तो आपने क्या बोला? आपने डायरेक्टली जाके बोल दिया मुझे नया मोबाइल चाहिए. आपके पिताजी ने बोला कोई जरूरत नहीं है नए मोबाइल की, कोई नहीं मिलने वाला है तुम्हें नया मोबाइल, अभी तो खरीद के दिया था तुम्हें, क्यों देंगे हम नया मोबाइल, चलो इसी से काम चलाओ. क्यों ये गड़बड़ हो गई कम्युनिकेशन में? क्योंकि आपने सीधे जाके 9th कचौड़ी हिट कर दी. पहले की आपने प्रिपरेशन बनाई ही नहीं कि व्हाई डू यू नीड, व्हाट इज द नेसेसिटी.
आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या था, आपका प्रिपरेशन फॉर कम्युनिकेशन कहाँ था, आप सीधे जाके आपने जो चाहिए था वो बोल दिया और आपका वहीं पर आइडिया रिजेक्ट हो गया। तो प्रिपरेशन फॉर स्पीच के लिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इट इज नॉट ओनली व्हाट यू स्पीक, it is how you are preparing to speak and how you are preparing the listener also to listen to what you are going to speak. जब दोनों तरफ से प्रिपरेशन मैच होती है और फिर आप बोलते हो तो आपकी बात में ज्यादा दम होता है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर अपने पिताजी के साथ हार्ट टू हार्ट टॉक करते, उनको समझाते कि आपका क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, वो आपके पिताजी आपकी बात को सुनने के लिए, अच्छा ऐसा भी नहीं होता कि हम किसी से बात करें और वो हमारी सुनने के लिए तैयार हो जाए, हमें उनको उस मोड पर लाना पड़ता है जहां वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो, और तब आप बोलेंगे तो आपकी बात मानी जाएगी। नहीं तो बहुत बार बातें इसीलिए टूट जाती हैं और रिश्ते भी इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि वो हम एक दूसरे की बात ही को नहीं समझ पाते। तो वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज। अगर आपने सपोज एक और एग्जाम्पल है, आपसे आपका फ्रेंड का कुछ नुकसान हो गया, आप उसकी बाइक लेकर गए और आपने कहीं एक्सीडेंट हो गया और उसकी हेडलाइट टूट गई। अब आप वापस आए और आपने बोला अरे यार सॉरी हो गया, तो ऐसा गलत हो गया, बस ऐसे ही हो गया, कुछ ऐसे तेरी गाड़ी का गड़बड़ हो गया, नुकसान हो गया। अब आपने कैजुअल तरीके से बोल दिया कि कुछ हो गया, बट आप उसके लिए सॉरी बोल रहे हो, बट आप सॉरी हो नहीं। तो आपका फ्रेंड तो आपसे बड़ा गुस्सा हो जाएगा कि तुम बोल तो रहे हो सॉरी, पर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से तो लग नहीं रहा है कि तुम सॉरी हो। तो अगर आप सॉरी बोल रहे हो और आप दिख नहीं रहे हो कि आप सॉरी नहीं हो, तो आपका बॉडी लैंग्वेज सारा गड़बड़ कर रही है। तो सॉरी अगर मैं बोलती हूँ तो मेरी टोन भी सॉरी की होनी चाहिए, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी सॉरी की होनी चाहिए, तब दूसरा इंसान मेरी बात को समझेगा कि भाई दिस पर्सन इज जेन्युइनली लुकिंग सॉरी। ठीक है, तो ये बॉडी लैंग्वेज के एलिमेंट, पैरावर्बल के एलिमेंट्स, ये सब हमें शब्दों में ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी पूरी शब्दों से बनी हुई है और आप जैसा बोलते हो, जैसा आप बिहेव करते हो, जैसा आपको लोग जानते हैं, वो सब आपके शब्दों के द्वारा ही जानते हैं। तो इसलिए कुछ भी अपने बारे में चेंज करना है या लोगों ने आपके बारे में कैसा सोचना चाहिए वो चेंज करना है, तो अपने शब्दों को चेंज करिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And for that you have to remember it is not only what you say but how you say, and there has to be a lot of clarity in what you speak. तो अगर क्लैरिटी आपके शब्दों में होती है तो वो क्लैरिटी आपका थॉट प्रोसेस का क्लैरिटी बताता है, क्योंकि आप किसी भी चीज के बारे में अगर बात बताना चाह रहे हैं तो उसके बारे में आपका क्लैरिटी क्या क्या है, ये शब्दों के द्वारा आता है। फिर हमने नॉन वर्बल का बताया, मैंने आपको ये नॉन वर्बल का बताया। फिर बहुत इंपॉर्टेंट आया इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में हम अपने आप से कैसे बातें करते हैं और हम अपने आप को किस नजरिए से देखते हैं। हम अपने आप को अगर मैं कभी भी, आप ये करके देखिएगा कि अगर आप सोचेंगे कि मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा है, अब मेरे से मैं ये कर नहीं पाऊंगा या मैं ये कर नहीं पाऊंगी, एकदम आपके कंधे झुक जाते हैं, गर्दन नीचे हो जाती है, आपके हाथ पांव ढीले हो जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। एंड द मोमेंट यू से कि आई विल डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट, आई विल सक्सीड, आपकी गर्दन ऊंची हो जाती है, आपके हाव भाव बदल जाते हैं, आपके सोचने का नजरिया बदल जाता है। तो every time you are thinking of something negative, please stop there, क्योंकि ब्रेन आपका जो है वो खाली जैसा आप उसे महसूस कराना चाहते हो वो वैसा ही महसूस करेगा। अगर आप कहते हो कि अच्छा है तो ब्रेन अच्छा महसूस करेगा, पर अगर आप कहते हो कि बुरा है तो ब्रेन बुरा भी महसूस करेगा। तो you talk to yourself and you can change this. So talk positive
and experience positivity and experience the power to change yourself and to express yourself better through positive intrapersonal communication. And this intrapersonal communication will help you talk positive in interpersonal also. सो वही जो मैंने बताया, आपके जैसे विचार होते हैं, फिर वैसा हम महसूस करते हैं, फिर वैसा हम बिहेवियर जानते हैं. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. जब भी हम कहते हैं कि किसी भी इंसान को दिस पर्सन इज वेरी वेरी सक्सेसफुल, तो सक्सेस हमारी होती है इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज. तो इमोशनल सक्सेस तो मेरे पास है ना. इमोशनली इफ आई कीप माय इमोशंस इन चेक, इफ आई keep my thoughts in check, if I keep my behavior in check, every other success will follow. We all want to be successful in life. Failure से सबको बड़ा डर लगता है, but taking failure also in a positive way, कि जैसे वो कहते हैं ना कि this is just a step to help me learn something new. तो वो कोई आपको नुकसान के लिए नहीं आया है, वो आपके बेटरमेंट के लिए आया है. Hello, somebody's mic is on. Okay, so behavior is communication and so I'm just going to do this. Somebody's speaker is on. Don't worry. अब हम so sometimes even if we try, oh, somebody's speaker is on. Could you please switch off the speaker? Yes, thank you so much. So we are now going to see the barriers. Barriers क्या होते हैं? रुकावटें. So जब आप एक ऑब्स्टिकल रेस में दौड़ रहे हैं और हर्डल रेस होती है ना, जब हम दौड़ते हैं और अचानक हमारे सामने एक बड़ा सा ऑब्स्टिकल रख दिया जाता है, कोई डेस्क रख दी जाती है, कोई चेयर रख दी जाती है, जिसको हमें जंप करके आगे जाना पड़ता है. तो जब हमारे सामने ऐसे फिजिकल ऑब्स्टिकल्स होते हैं तब तो हम उन्हें देख लेते हैं, पर कम्युनिकेशन में ऐसे फिजिकल ऑब्स्टिकल्स नहीं होते हैं, तो अनसीन बैरियर्स होते हैं. पर उन अनसीन बैरियर्स के कारण कभी कभी मेरे मैसेजेस आगे तक नहीं पहुंच पाते हैं. तो आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल टू अवॉइड दोज बैरियर्स. एंड ये देखिए, ये अगर मेरे पास सामने कोई बैरियर आ गया है तो मेरा मैसेज आगे तक जाएगा ही नहीं. तो इसलिए आई हैव टू बी वेरी केयरफुल. मुझे उससे अपने इमोशंस को कंस्ट्रेन करके रखना है, नॉन वर्बल क्यूज को समझना है, फीडबैक को समझना है, सिंपल लैंग्वेज में बोलना है और एक्टिवली सुनना है. कंस्ट्रेन इमोशंस माने इमोशंस को काबू में रखना, नॉन वर्बल क्यूज को समझना, फीडबैक अगर कोई मुझे अच्छा देता है या बुरा देता है, दोनों को सही तरीके से काबू में सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, साधारण भाषा में बात करना और बहुत अच्छे से सुनना. और क्या क्या हमें करना चाहिए जब आप बोलते हैं किसी के भी साथ? आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए. These will really help you in becoming a better communicator. So speak at a steady pace. एक जैसी स्पीड में बात कीजिए, बहुत ज्यादा आगे नहीं, बहुत ज्यादा तेज नहीं, बहुत ज्यादा धीरे नहीं, एक नॉर्मल स्पीड में बात कीजिए. बात करते हुए स्माइल बहुत करिए, वैल्यू द अदर पर्सन्स व्यू, उसको रिस्पेक्ट कीजिए. ये चीजें आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. एंड नेवर बी लिटिल, किसी को नीचा मत दिखाइए.
कभी एग्रेसिव टोन ऑफ वॉइस को मत यूज कीजिए, ना तो बॉडी लैंग्वेज को ऐसी एग्रेसिव बनाइए, और कभी किसी को इंटरप्ट मत कीजिए. लेट द पर्सन स्पीक, लिसन केयरफुली, एंड दैट इज व्हाट विल हेल्प यू बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर. अब ये आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ कहाँ आने वाला है, ये क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी. लिसनिंग की इंपॉर्टेंस है, फ्रेंडलीनेस की इंपॉर्टेंस है, ओपन माइंडेड आपको होना चाहिए, आपको फीडबैक के लिए वेट करना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यू शुड अंडरस्टैंड द क्यूज. सो दीज स्किल्स will help you have a great career, and that is why communication is very important. आजकल actually 21st century skills में top skill for job scenario is communication. Collaboration, communication, creativity, and critical thinking. These are the 4 skills, and communication is the topmost skill. अगर आप गुड कम्युनिकेटर हैं, आप अगर इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं, एंड you are talking all the time positive to yourself, you can lead, you can really reach great success. आपको जितने भी आप लोगों के बारे में सोचेंगे, आप कहीं ना कहीं यही पाएंगे कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर पाए, वो आपको इम्प्रेस कर पाए, बिकॉज दे हैड ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स. सो person who can express himself and herself in a very very good way always reaches great heights of success. And communication is nothing but the ability to express. So see how everything is connected. How you express, how can you express yourself better? When you change the way you communicate, because words have that power, and that power to change, that power to act is going to make you a better communicator and a more successful person in life. So thank you so much. With this, I come to the end of my presentation. If there are any questions, I will be free to take those questions. I will come to stop sharing now. Okay. Yes. So if there are any questions, we can have the questions in the chat box. Ma'am, one question is there in a chat box. How to stop thinking about others? One question is How for you. How to stop for thinking others? How to stop thinking about others? Yeah, madam. Okay. तो हाउ टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स में यही, हम दूसरों के बारे में तब सोचते हैं जब दूसरों ने हमें या तो किसी ना किसी चीज में इन्फ्लुएंस किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर उन्होंने पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस किया है तो हम उनकी पॉजिटिव, अच्छा अगर किसी ने मुझे हर्ट किया है, आई थिंक दिस इज व्हाट यू मीन, इज दिस व्हाट यू मीन कि मुझे किसी ने हर्ट किया है और मैं उनको भूल नहीं पा रही हूँ या भूल नहीं पा रहा हूँ, क्या ये है क्वेश्चन? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा ब्रेन है ना, ये फेक और रियल के बारे में नहीं जानता. हम अपने ब्रेन को जैसा महसूस कराना चाहते हैं, ब्रेन वैसा ही महसूस करता है. और एक जो ब्रेन की नेचुरल टेंडेंसी है वो है नेगेटिव सोचने की. ये एक्सपेरिमेंट किया गया. एक बार बहुत सारे लोगों को एक कमरे में बुलाया गया और उनको बहुत सारी पॉजिटिव इमेजेस दिखाई गई और उनके ब्रेन की मैपिंग की जा रही थी जब उनको पॉजिटिव इमेजेस दिखाई गई.
तो ब्रेन में कोई ज्यादा हलचल नहीं थी। और उसी एक दूसरे कमरे में एक दूसरे सेक्शन ऑफ ऑडियंस को ले जाया गया और उनको नेगेटिव इमेजेस दिखाई गई। और जैसे ही नेगेटिव दिखी, ब्रेन एक्शन में, ब्रेन तरह तरह के इंटरप्रिटेशंस, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, एक्टिविटी शुरू हो गई ब्रेन में। नेगेटिव देख के ज्यादा रिएक्शन। और भी बहुत रिसर्च की गई तो ऐसा पाया गया कि ब्रेन ऑन इट्स ओन has a negative bias। जब भी कोई भी चीज हमारी धारणा के हिसाब से नहीं होती है, हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। जैसे बच्चा देर से घर पहुंचा या कोई किसी चीज में रुकावट आ गई तो हमें लगता है ओहो अब तो एवरीथिंग हैज कम टू एन एंड या एवरीथिंग इज गोइंग टू गो कोलैप्स। तो ये हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। तो ऐसे ही दूसरों के बारे में सोचने में भी हमें कितनी बार ऐसा लगता है कि दूसरे हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते, और इसलिए हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं कि वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते, मेरा अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा और इसलिए मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ। पर ये भी एक रिसर्च में पाया गया कि 99% ऑफ द टाइम वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट अदर्स, others are not thinking about us, everyone is thinking about oneself। तो मेरा ये विचार रखना कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बिल्कुल मेरे दिमाग में खुद पैदा की हुई एक परेशानी की जड़ है, क्योंकि दूसरा इंसान मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा है, पर मैंने अपने आप को परेशान कर दिया ये सोच सोच के कि व्हाट इज दैट पर्सन थिंकिंग अबाउट मी। So it is all training the brain, and instead of thinking about that person, if I think about positive things that I can bring in my life, क्योंकि ये तो self talk हो गया ना, interpersonal communication का हो गया, तो ये तो words ही हो गए। तो अब मुझे उन्हीं वर्ड शब्द को चेंज करना है और मुझे उनके बारे में अच्छा सोचना है, रिप्लेस करना है। तो जब मैं उनको पॉजिटिव में रिप्लेस कर देती हूँ तो मेरा एटीट्यूड भी चेंज होता है, मेरे इमोशंस भी चेंज होते हैं, मेरे फीलिंग्स भी चेंज होते हैं, मेरा बिहेवियर भी चेंज होता है। तो हाउ टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स में आई वुड से कि यू चेंज द पैटर्न ऑफ हाउ यू टॉक टू योरसेल्फ, हाउ टू talk positive things to yourself, because the natural tendency of the brain is to think negative। इसीलिए कहते हैं train the brain। train the brain माने ब्रेन को क्या ट्रेन करने के लिए करना है, पॉजिटिव सोचने के लिए करना है, क्योंकि जब हम उसमें पॉजिटिव फीड नहीं करते हैं ना तो ब्रेन नेगेटिव ही सोचता रहता है। तो हाँ, आप अपने अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे, कुछ हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, कुछ अपनी अच्छी बुक्स के बारे में सोचेंगे, कुछ अच्छे मोटिवेशनल लेक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप भी उस पर्सन के बारे में सोचना भूल जाएंगे, and you will automatically divert your mind to something more positive। That is what I would say। Yes, so how Thank you, to madam. stop thinking about, yes, yes। Does that, yeah। And do you ever stop to think about how you share yourself with others, how to increase our commitment level? That is another question। So how to increase our commitment level में, again, commitment level is all about giving, staying focused, है ना? This is what I think it means कि commitment माने focus। जहां हमारा ये अगेन एक, ये मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की हुई है तो उसमें एक बहुत अच्छा, और अदरवाइज ऑल्सो इट इज अ नॉर्मल प्रिंसिपल, योर फोकस, wherever your focus is, your energy will flow in that direction। कितनी बार आपका पेन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है और आपका कुछ काम करना है और सोच सोच के सर और ज्यादा दर्द हो रहा है, तब तक पता चला छुट्टी हो गई, अब वो काम नहीं करना है, instantly the pain disappears। So wherever you are focusing, your energy will flow in that direction, your attention will flow in that direction, and your commitment will also be in that direction। तो अगर मुझे commitment level increase करना है, I have to be more focused, and that can only come again by training my brain।
कि भाई मुझे तो पता है कि ये चीज मुझे करनी है कंप्लीट, अब मैं अगर उसको आधे अधूरे मन से करूंगी तो 4 घंटे में लगेगा, बट इफ आई डू इट इन 2 hours, maybe in 2 hours I can watch my favorite TV program. So give yourself some kind of incentive. अगर मैंने ये 1 घंटे में कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद मैं फ्रेंड से बातें कर सकती हूँ, उसके बाद मैं कुछ बाहर बाहर तो नहीं जा सकते, बट आई कैन डू समथिंग दैट आई लाइक टू डू. So tell your brain, let me do it in 1 hour and then I will do something interesting for myself. So when you have focused in this manner, तो आपका कमिटमेंट भी मोर फोकस्ड हो जाएगा. और कई स्टूडेंट्स का या कई हम लोगों में से ऐसे होते हैं, प्रोफेसर्स, हम लोग सब प्रोफेशनल्स, वी कैन नॉट स्टडी फॉर 4 hours or we cannot study for 2 hours, we cannot study for 1 hour also. So 45 minutes में give yourself a break and then sit for 45 minutes में give yourself a break for 5 to 10 minutes and then sit with a renewed determination. I'm going to do this quickly and see what I'm going to do after this, something that I enjoy. So when we keep talking to our brain in this positive manner, then our tasks also get accomplished in the right way and the way we wish it to be. Yes. So there is another question. What should be our behavior during interview? So your behavior during interview should be very, very positive, very, very positive and confident, of course. But मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि वो कॉन्फिडेंस के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस दिखने लगते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट, कि अंदर से तो इनसिक्योरिटी है एंड दे आर ट्राइंग टू शो दैट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और वो गलत बॉडी लैंग्वेज हो जाती है. So I would say you should be very sincere, very honest, very positive, very genuine during your behavior towards facing any, when you're facing any interview. So that should be your behavior. And you should be very well prepared. Preparedness is the key to crack any interview. Rehearse again and again with your friends, with your professors, with your family members, so that when you go there, you don't have anxiety. जो ये एंजाइटी होती है ना, ये हमें बड़ा नर्वस कर देती है, और अगर हम एंजाइटी को ओवर पार कर लेते हैं, उसको हम कॉन्फिडेंस से रिप्लेस कर लेते हैं, तो देन वी आर बेटर इक्विप्ड टू क्रैक एनी इंटरव्यू. सो यू शुड बी व्हाट यू आर, एंड एक दिन में हम बदल नहीं सकते, तो हमें अभी से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि माय thought process should be positive, my attitude should be positive, my feelings should be positive, and I should come across as a positive person. So start preparing from now. Yes, genuineness is very, very important. Yes. There is another question. Do you ever stop to think about how you share yourself with others? Gitesh ka ye question hai. Do you, I mean, is this question for me? Do I ever stop to think how I share myself with others? Gitesh, आप unmute करके बता सकते हैं? तो अगर हाँ गीतेश. No madam, he left the meeting. अच्छा, ठीक है. तो ये इनका talk to, how to show our body language when we talk to anyone. Okay. So how to show our body language when we talk to anyone. आपकी body language आपको दिखानी नहीं पड़ती है. आपकी body language आपके thought process को interpret करके automatically लोगों के सामने आ जाती है. तो whenever you are talking to someone, you have to be in that moment, focused at that moment to be talking to that person. अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं, उनकी वेलबींग के बारे में पूछ रहे हैं, और दिमाग में पीछे क्या चल रहा है, मेरे को किसी को कर्जा देना है, मेरे को किसी को EMI पे करना है, तो अभी दोनों में कंट्रास्ट हो गया. तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसकी ऐसा लगेगा कि ये बंदा मेरे बारे में पूछ रहा है पर मुझे दिख नहीं रहा है कि ये मेरे बारे में इंटरेस्टेड है. तो being in that moment
genuinely caring for what you are saying is important. So how to show our body language when we talk to anyone? Body language आपका अपने आप involuntarily चलता रहता है. I can only control it by staying positive in my subconscious. कि मैं सोचते रहूं कि मैं जो बोल रही हूँ उन पे मुझे बिलीफ है, कन्विक्शन है और कॉन्फिडेंस है, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही आएगी. और अगर नहीं है तो मैं कुछ भी बोलूं, बॉडी लैंग्वेज कुछ चलेगी, मेरे शब्द कुछ चलेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. बॉडी लैंग्वेज एंड वर्ड्स शुड मैच एंड इट शुड ऑल बी पॉजिटिव. Then it is a big success. Yes, that's a very good question, and I'm so happy that students are asking these wonderful questions. आप लोगों के लिए communication बहुत important है, because job scenario is very tough. There are people competing with each other. Even when you get a job, surviving in the job becomes very difficult, because again communication is everywhere, and sometimes you get along with people, sometimes you do not get along with people. So if you are a good communicator, you will have less misunderstanding and more of harmonious relationships around you. So that is very important. Any other question? Does that answer your question, Chetan? Thank you. Any other question? Yes. Okay. So आप लोगों को जितने सब बच्चे जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, और सबकी आजकल तो पावर इज एवरीवेयर. पहले तो ऐसा कह सकते थे कि पावर लिमिटेड है. आज तो सबके पास इंफॉर्मेशन है, सबके पास नॉलेज है, सबके पास डिग्री है, सबके पास स्किल्स हैं. तो एवरीवन इज पावरफुल. और वो पावर किधर है? वर्ड्स में है. तो लेट्स एक्सेस दैट पावर एंड लेट्स utilize, unleash our potential. Potential is in each one of us. सब यूनिक है, सब गिफ्टेड है, सब में वो टैलेंट है. तो खाली उसको अनलीश करना है, which we can do when we decide to do. And action is the key point. तो जो आपने आज यहाँ पे सीखा है, उसको एक्शन में लाना बहुत जरूरी है. खाली नॉलेज आ गई, समझ में आ गया, अब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. आपको एक्शन में उसको लाना है, पॉजिटिव सोचना है, चेंज करना है अपनी पर्सनालिटी को, तभी यू कैन बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. And then you can send me messages, you can send messages to your professors, you can show that improvement, that this has really worked. That is the true power. Yes. So I don't think there are more questions coming in, sir. No, madam, that's it. Yes, but I'm so happy that children did ask these questions. If you have any more questions, please do ask, because we have time. I don't think there are more questions. Thank you so much. Thank you is coming. And all the good wishes to all of you, because you all have great career in front of you. So you should really choose to win and win in your life. Everything starts with a determination, the determination that I make to myself to change. Okay, I think all thank yous are coming in, and thank you so much for this opportunity. Thank you so much. Thanks, madam, for your precious guidance. Your knowledge really very helpful to our participants. Thanks a lot, madam. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. And it has truly been a
pleasure interacting with all the students, all the participants, and really, truly a great, great opportunity. Yes. So I'm so happy with all the thank yous that are coming in. Please write your feedback. Somebody, if you would like to share something. So shall we close this meeting then, sir? If there are questions, then Yeah, ma'am, sure. Because there is no other question, only student thanking you for your guidance. yes. So please make sure that you implement this guidance, and wishing every one of you a great, great career ahead, and lots of good wishes for a brilliant future. Lots of good wishes to your college, sir, for putting in such efforts to shape the personalities of the students. And ma'am, thank you so much for giving me this opportunity to be here to interact with students. So, and all the management, all the professors who have taken the initiative, thank you. Thank you so much. Truly, I've truly enjoyed the session. So I will leave the meeting now. Yeah, ma'am, thank Yes? you very much. Yeah, ma'am, thank you very Oh, much. I'm closing the meeting oh, right now. thank you.